So welcome back to my channel, me and my creations. As you know, our first chapter is going on, that is nature and scope of political science. So as you know, we have the five dimensions of scope of political science. The one is political theory, uh, comparative politics, political administrations, political economy, and international relations. So we have discussed three scopes. Now we are going to start with public administrations and its scope. So I made few notes on this topics. Let me start. पॉलिटिक्स प्रोसेस क्या है? पॉलिटिक कैसे प्रोसेस करती है? सो आई डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. पॉलिटिक्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग अथॉरिटीज, implement authoritative, binding and policy law, decision, reward, and the fourth is punishment and rules. If we talk about the implement authoritative, the implement authority of this authoritative value is secured by the government through its several department, each of which is headed by minister and well organized team of the civil servants. जो implementation होती है वो और जो making of authority होती है वो एक टीम के अंडर होती है, और जो इसमें अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जो काम होता है वो सिविल सर्वेंट्स के दोबारा होता है. तो ये हमारे जो थे पॉलिटिकल प्रोसेस. Next, if we talk about the public administration, that is depend on society. Public administrations के scope में society play a very vital role. So I will tell you what's the four thing system need for society. The first is political system. Then next is economic system. Then the cultural system, the public administration system. ये four thing एक society को चलाने के लिए ये four जो system है it is very mandatory. So I will tell you what is consist in these system. First we will start from political system. Consist interactions and relation involved in the struggle for power through which authoritative decision are made and implement for society. इसमें political में क्या होता है? इसमें interaction and relationship involved होती है और इम्प्लीमेंट होते हैं सोसाइटी में जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन होती है. इफ़ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम, एज यू नो, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स देन द टैक्सेस एंड रेवेन्यू विल बी डिस्कस इन इकोनॉमिक सिस्टम. सो इन द इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑल रिलेशन एंड इंट्रैक्शन ऑल इन्वॉल्विंग मनी, वेल्थ एंड रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स है तो ऑब्वियसली हम उसमें मनी वेल्थ के बारे में ही बात करेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट कल्चर सिस्टम कंसिस्ट वैल्यूज, बिलीव, ओरिएंटेशंस, ट्रेडिशनल सिंबल्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी. कल्चर सिस्टम में हम किसके बारे में बात करेंगे? हमारी वैल्यूज़ के ऊपर, बिलीव्स के ऊपर, इन सब के बारे में बात होगी. इफ़ वी टॉक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच वी आर गोइंग डूइंग, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टम ऑफ executive public policy as formulated by competent authority. No society can be well organized administration system. Obviously, if you are studying a school, if the principal sir will be not there and the other admin department should not be there, तो what happened इन द स्कूल? क्या होगा स्कूल में इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा. अगर आप लगाओ स्कूल में अगर कोऑर्डिनेटर नहीं होगा या फिर स्कूल में प्रिंसिपल सर नहीं होंगे, एडमिन ऑफिसर नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा? स्कूल में इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा. तो विदाउट प्रिंसिपल सर एंड अदर अथॉरिटीज़ हम मान ही नहीं सकते भी एक स्कूल है. स्कूल को चलाने के लिए एक हाई अथॉरिटीज़ चाहिए. सेम एज इट इज़ पॉलिटिकल साइंस में. पॉलिटिकल साइंस को चलाने के लिए public administration system should be there. Now we will discuss scope of public administration, that is divided into two parts: administrative theory and applied theory. If we discuss about administration theory, public administrative is concerned with the administrative activities of the government. गवर्नमेंट की 3 एक्टिविटीज़ होती हैं. कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड judicial functions. It include the structure, organization, function and method of all type of authority in a administration, whether national,
रीजनल और लोकल वेनेदर एग्जीक्यूटिव और ऑर्डिनरी। ये कह रहा है भी जो हमारी गवर्नमेंट्स की इसकी 3 जो मेन होती हैं एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर एक्सप्लेन में। और इसमें हर टाइप की अथॉरिटीज़ होती है, चाहे वो रीजनल है, चाहे लोकल है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, ऑर्डिनरी, हर तरह की जो अथॉरिटी है इसमें ये उनके फंक्शन उनको ऑर्गेनाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, उस अथॉरिटीज़ को फंक्शनिंग देखते हैं, ये सब इंक्लूड होता है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, पब्लिक एक्शन, रिक्रूटमेंट्स, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है भी, हमने रिक्रूटमेंट्स कैसे करनी है, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में। अगर हम लास्ट स्कोप पे थोड़ा जाएँ तो हम इसमें स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रीड किया था, तो दिस इज सेम एज इट इज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, सब कुछ वही कंसीडर किया गया है इसमें। नाउ द नेक्स्ट इज अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशंस। According to Walker, that is the scientist of political science, you can say thinker of political science, the sphere of applied administrations implies that public administration involves the application of all administration decision. Walker divided into basic 10 प्रिंसिपल। वॉकर्स ने इसको 10 प्रिंसिपल में डिवाइड किया था, तो हम इसके 10 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वो क्या क्या हैं। तो ये 10 प्रिंसिपल्स हैं जो इसमें इसके थिंकर्स ने डिवाइड किया था। फर्स्ट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या ऐड होगा, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिशियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी फॉर द कैबिनेट। ऑब्वियसली पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें कैबिनेट और जो भी हमारी गवर्नमेंट के प्रोसेसिंग है वो करेंगे। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन। इन द it is related to legislation and preparatory work done by the officially and the ड्राफ्टिंग बिल्स। नेक्स्ट इज फाइनेंशियली। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो उसमें पैसे की बात होगी, तो इट इंक्लूड द वाइल फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द फ्रॉम द प्रिपेयरिंग ऑफ द बजट टू इज एग्जीक्यूशंस। हमने अब फिजिकल पॉलिसी पढ़ी थी जो जिसमें था भी जो टैक्स एंड ऑल दिस थिंग को देखती है, तो इसमें फाइनेंशियल्स में भी वही सब प्रोसेसिंग आ जाएगी। नेक्स्ट इज डिफेंस। डिफेंस में मिलिट्री आएगा, इट्स नॉर्मल, इट इंक्लूडेड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल। एजुकेशनल में क्या आएगा, इट्स कवर all the aspect of education administration. Social, it include all social fields such as housing, food, others. Economics, it include all activities, industry, agriculture and etc. So last is our 3 local. It is administration's local bodies and the imperial. इट्स द इंग्लैंड में जो किंग होता है उसके साथ हमने कैसे रिलेशन बनाने हैं, ये सब इंपीरियल में आएगा। इट्स कवरिंग प्रॉब्लम एंड टेक्निक्स ऑफ इंपीरियल डोमिनेशंस। नेक्स्ट लास्ट इज फॉरेन एंड इंटरनेशनल। इट्स कवरिंग फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन विच इज इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। फॉरेन में क्या आएगा भी, हम इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे डेवलप करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब फॉरेन में आएगा। तो ये आपका जो टॉपिक था पब्लिक स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कंप्लीट हो चुका है।